لاکھ ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی. آج ہمارے پاس سعودی عرب سے جناب محمد اشفاق حنیف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں جو انرجی ایکسپرٹ ہے اور ان کا کوئی 34 سے 35 سال کا تجربہ ہے اس شعبے میں. آپ ان کی نوجوان شکل پہ نہ دیجیے گا. یہ بہت ماشاءاللہ تجربہ کار اور انہوں نے مختلف حیثیتوں میں کام کیا ہوا ہے. واقعہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے جب یہ سعودی الیکٹرک کمپنی میں چلے گئے اور وہاں پروجیکٹ منیجر رہے جو 99 سے لے کے ابھی تک پروجیکٹ منیجر ہی کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے واٹر ریسورسز پروجیکٹ پہ بہت کام کیا جس میں مختلف ڈیم بھی شامل ہیں. پھر مختلف سب اسٹیشنز پہ یہ ٹرانسمیشن لائنز پہ کام کرتے رہے سعودی عرب میں اور اب بھی انہی چیزوں پہ ہی کام کر رہے ہیں. ہم ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا انرجی کرائسس سال سے چل رہا ہے جس میں میرا خیال ہے مور دین 25 ایئرس ہو گئے ہیں جب سے یہ ہم ہر مہینہ ہر روز ہر ہفتہ انرجی کو ہی روکتے ہیں کہ یہ بجلی گئی بجلی آئی بجلی کب آئے گی. ہم اس سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں بجلی کے اصل مسائل کیا ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سوال بھی لنک ہو جاتا ہے کہ ہم سستی بجلی پیدا کرنے کے قابل کیوں نہیں ہو پا رہے. جی اشفاق صاحب آپ تھوڑا بتائیں گے ہمیں. یہ دو سوال ہو گئے آپ سے. ٹھیک. السلام علیکم. اصل مسائل کیا اور بجلی سستی کیوں نہیں ہو پا رہی. جی تھینک یو ویری مچ احسان صاحب. تو ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں میرا تعارف کرایا. بیسیکلی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے چلوں گا. میری جو اپنی فیلڈ ہے وہ تو ویسے میں نے بیسیکلی سول انجینئر ہوں اور اس کے بعد میں نے ایم ایس سی اسٹرکچرل انجینئرنگ میں کی تھی لیکن میں نے واپس جوائن کر دیا 87 میں. اور پھر میرے جیسے آپ نے بتایا کہ واٹر ریسورسز پروجیکٹس پہ کافی ایکسپیرینس رہا, بڑے بڑے ڈیمس پہ ایکسپیرینس رہا. اور جب میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا 99 میں تو پھر میں سعودی عرب موو کر گیا اور سعودی عرب میں جو ہے وہ میں سعودی الیکٹرسٹی کمپنی میں ایز اے پروجیکٹ منیجر کام کر رہا ہوں. وہاں بھی میں نے سب اسٹیشن اور ٹرانسمیشن لائن کے پروجیکٹ پہ کام کیا. اچھا, آپ نے جیسے یہ کہا کہ مطلب یہ جو ہمارا کرائسس ہے الیکٹرسٹی کا یہ بہت عرصے سے ہے اور ابھی تک سالو نہیں ہو پایا. اور پھر ایک یہ بھی پرابلم کہ بجلی بہت مہنگی ہے, اس کو کیوں نہیں کر سکے, سستی بجلی کیوں نہیں مہیا کر سکتے. تو سر بات یہ ہے کہ اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ اس کی جائیں تو 1960 میں ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. UN کی صدرائی میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا. اس ٹریٹی کے مطابق بہت سارے ڈیمز جو ہیں وہ پاکستان میں بنے, اریگیشن سسٹم ڈیولپ ہوا. جو ڈیمز بڑے بڑے بنائے گئے جیسے آپ کو پتہ ہے واسک ڈیم بنا تھا, اس کا پھر تربیلا ڈیم بنا تھا اور منگلا ڈیم بنا تھا. منگلا ڈیم ہمارا 1968 میں بن گیا تھا. اس کے بعد 74-75 میں ہمارا تربیلا ڈیم بن گیا تھا اور تب سے لے کے آج تک ہمارا کوئی بھی ڈیم جو ہے وہ نہیں بن سکا. اس میں یہ ہے کہ جو ہائیڈل پاور ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے. آج بھی اگر ہم کمپیریزن کریں ہائیڈل پاور کو ہماری جو تھرمل پاور ہے اس کے ساتھ, تو ہائیڈل پاور جو ہے ہماری تقریباً آج بھی 2 سے 3 روپے یونٹ پڑتا ہے ہمیں, جبکہ تھرمل پاور کی جنریشن جو ہے وہ ہمیں 18-20 روپے پڑتی ہے. اور اس کے اوپر جو ٹیکسز وغیرہ گورنمنٹ کے لگتے ہیں اور جب بلنگ ہمارے پاس پہنچتی ہے تو وہ تقریباً 29-30 روپے کا یونٹ ہمیں پڑتا ہے. تو یہ بہت پرابلم ہے کہ ہماری اصل میں انرجی پالیسی جو ہے وہ ہائیڈل سے شفٹ کر کے تھرمل پاور کی طرف چلی گئی. اگر ہم ہائیڈل پاور پہ رہتے جیسے کہ ہمارا تربیلا ڈیم 74 میں بن گیا تھا, واپڈا کی اپنی پلاننگ کے مطابق, اس کے بعد کالا باغ ڈیم بننا تھا, پھر بادشاہ ڈیم بننا تھا, پھر محمد ڈیم بننا تھا, داسو ڈیم بننا تھا. اس کے علاوہ ایک مطلب سیریز آف ڈیمز جو تھی وہ کنسٹرکشن ہونی تھی ان کی, لیکن ان چیزوں کو روک دیا گیا. کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا, اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. اور اس کے بعد جتنے بھی پروجیکٹس تھے ہائیڈل پاور کے وہ روک دیے گئے. اور اس کے بعد ہماری پالیسی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ٹورڈز آئی پی پیز. مطلب جو ہماری تھرمل جنریشن ہے اس میں نئے نئے آئی پی پیز آئے, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئے. ہماری گورنمنٹس کی جو ہے وہ نئے نئے کانٹریکٹ کیے گئے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. اشفاق صاحب کو روک رہا ہوں میں. جی جی مجھے یہ بتائیے کیا جیو تھرمل
और सोलर, इससे भी सस्ता नहीं पड़ता? सर उसमें मैं ये आपको बता दूं कि अभी पिछले तकरीबन 5-6 साल पहले तक तो उनकी भी कॉस्ट काफ़ी हाई थी। क्योंकि हमारे जो पिछले दौर के आज से 5 साल पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं थर्मल जियो थर्मल के, जैसे कहते थे, अभी तक हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, लेकिन सोलर और विंड पावर के प्रोजेक्ट्स हुए थे। उनमें तकरीबन हमारे 9 सेंट से लेके 12 सेंट तक के प्रोजेक्ट्स हैं। सही है, ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी सस्ती हो गई है, ऑलमोस्ट 40-50% पे आ गया उसका रेट। तो तकरीबन 3.5 से 4 सेंट तक उसका रेट आजकल चल रहा है। और अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे, सोलर की तरफ और विंड की तरफ, क्योंकि तो हम इसमें हमें आई इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जी जी ना हमारा फॉरेन एक्सचेंज आया होगा। बिल्कुल सही है। आप देखें कि हमारे पास ऑलमोस्ट 24 आवर सूरज जो है वो चमकता है, और 12 मंथ्स ऑफ ईयर जो है वो हमारे पास सोलर एनर्जी मौजूद होती है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारे सोलर फार्म्स जो हैं वो हमारे बहुत सारी ज़मीन जो है वो उसके ऊपर मतलब कई एकड़ रकबे पे सोलर फार्म्स होते हैं, और वो लैंड हम इस तरह बचा सकते हैं। तरफ स्टेट नहीं जा सकते हैं? नहीं, उसमें हम जो पैनल्स तो ज़ाहिर है वो ज़मीन पे लगेंगे, लेकिन उसमें मैं एक करता चलूँ इजाफा कि आजकल दुनिया जो है वो फ्लोटिंग सोलर पैनल की तरफ जा रही है। फ्लोटिंग मीन कि हमारे पास बड़े बड़े रेजरवायर्स हैं, जैसे तकरीबा डैम का रेजरवायर है, मंगला डैम का बहुत बड़ा रेजरवायर है, उसके ऊपर हम फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं। और फ्लोटिंग सोलर पैनल वही काम करते हैं जो हम जमीन के ऊपर जो हमारे पैनल्स होते हैं वही काम करते हैं, और हमारी जमीन भी बच जाएगी, वो ज़रूरी रकबे हमारे तबाह नहीं होंगे, और हम जो है ऑलरेडी रेजरवायर्स हमारे पास हैं, उन्हीं रेजरवायर्स के ऊपर हम फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। उसके एक और फायदा ये भी है कि चूंकि आपको पता है कि जो हमारे रेजरवायर्स हैं वो उनका पानी इवेपोरेट होता रहता है, उनकी जब हम सोलर पैनल्स लगा लेंगे, फ्लोटिंग सोलर पैनल, तो रेजरवायर से पानी भी इवेपोरेट नहीं होगा, और जितना पानी हम बचाएंगे उससे फर्दर हम हाइडल पावर बना सकते हैं। तो उससे हम 2 फायदे ले सकते हैं, तो सोलर एनर्जी और फिर हाइडल पावर भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मैंने पहले भी अपने कई कॉलम्स जो लिखे हैं उनमें और जो इंटरव्यूज दिए हैं उनमें हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि वो फ्लोटिंग सोलर पैनल की तरफ आएँ। उसके अलावा अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो हमारा बहुत बड़े विंड रेजरवायर्स हैं हमारे पास। जैसे सिंध में भूरू के मुकाम पर बहुत बड़ा विंड रेजरवायर है, जहाँ पे आजकल हमारे विंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और तकरीबन 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी के हम विंड प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। जब मुझे कर दीजिएगा तो मेरा सवाल कितना हो, पहले जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट थे वो सिर्फ उन इलाकों के लिए थे जहाँ रफ्तार हवा की 60 किलोमीटर थी, अब सुना वो 15 पे आ गई है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। दिन ब दिन जो है वो इसमें जिद्दत आती जा रही है। अब जो टर्बाइंस मौजूदा दौर में बन रही हैं, लेटेस्ट टर्बाइंस में वो बड़ी कम स्पीड एनर्जी पे जो है वो चल जाती हैं, तो डेफिनेटली वो अगर हमारे पास 15 पे हो तो लाहौर भी लग सकते हैं। बिल्कुल, लाहौर में भी लगाए जा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया था आज से कुछ अर्सा पहले कि हमारे कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम विंड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जहाँ पे मतलब साल पूरे 12 महीने जो है हमें एनर्जी मिलती रहती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ठीक है कुछ अर्सा तो एनर्जी हमारे पास होती है, विंड एनर्जी। चकवाल की बेल्ट थी जो जी चकवाल की बेल्ट है हमारे पास, बलूचिस्तान का साहिली इलाका है, सिंध का साहिली इलाका है, और इसके अलावा स्वात में जो हमारे स्वात रिवर के साथ साथ के जो इलाके हैं वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बेल्ट है इसकी। तो ये अगर हम टोटल पाकिस्तान की एनर्जी का दें तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर मेगावाट हम विंड एनर्जी से बना सकते हैं। इसी तरह सोलर से कई हज़ार मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वापस हाइडल की तरफ अगर आए तो हाइडल पावर जो है वो भी हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 65,000 मेगावाट की है। जो हम जितने भी हमारे रेजरवायर्स हैं अगर उन पे हम जो डैम्स प्रपोज किए हुए हैं वो डैम्स अगर हम बना लें तो 65,000 मेगावाट की कैपेसिटी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 9,000 मेगावाट की कैपेसिटी ले रहे हैं मौजूदा डैम से। तो मौजूदा डैम जिनमें तकरीबा, मंगला और वार्षिक डैम है, ये बड़े बड़े डैम हैं, बाकी छोटे भी हैं कुछ, लेकिन इन्हीं डैम से हम जो है ना वो तकरीबन 9,000 मेगावाट ले रहे हैं। और अब ये है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसकी पॉलिसी थोड़ी सी शिफ्ट नज़र आती है उसमें, वो अब थर्मल से हाइडल की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे फ्यूचर में इस चीज़ का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा।
अभी देखें आप, जो मौजूदा डैम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जिनकी, उनमें दासू डैम है, भाषा डैम है, महमद डैम है, इसके अलावा कुछ, ये तो 3 बड़े डैम्स हैं, इसके अलावा कुछ छोटे डैम्स जिनमें आज़ाद कश्मीर में कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, आज़ाद पतन है, और तुरंतंगी डैम है सुबह सरहद में KPK में। तो इसी तरह कुछ और छोटे डैम्स बन रहे हैं। तो ये टोटल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार मेगावाट की है, जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन डैम्स है। तो ये सारे जो है तकरीबन 7-8 साल लेंगे, तकरीबन 28 तक हमारे ये डैम्स तैयार होंगे। उसके बाद ये 9,000 और 14,000 ये मिलकर तकरीबन 20,000 के करीब तो है, 20-22,000 के करीब हमारी कैपेसिटी पहुंच जाएगी। तो करना भी यही चाहिए कि हमें आस्ता आस्ता हाइडल पावर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। थर्मल पावर को जो है वो वक्त के साथ साथ रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि थर्मल पावर जो है वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका। आपने पाकिस्तान के जो बिजली के असल मसाइल हैं उनकी निशानदेही भी कर दी और फ्यूचर की प्लानिंग भी दे दी है कि अगर हम इस तरह कर लें तो हम अपने बिजली के मसाइल पे काबू पा सकते हैं। सर एक मिनट और, एक वो मैं करता हूँ हम इसके अलावा जो और बड़ा मसला है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द एक्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। हाँ, वो हमारा जो है बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेस होते हैं। हमारी जो बिजली की प्रोडक्शन होती है जब वो सार्फिन तक पहुंचती है तो बहुत कम रह जाती है। यहाँ अशफाक साहब अगर मैं ये कहूँ कि जो इन महकमों के चोर बैठे हुए हैं, जो लुटेरे बैठे हुए हैं, वो आपकी बिजली चोरी करके लाइन लॉसेस में डाल रहे हैं, तो उसका क्या जवाब है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक सर्वे के मुताबिक जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने सर्वे किया था उसमें हमारे तकरीबन सिंध के इलाके में 35% तक लाइन लॉसेस है। और वो लाइन लॉसेस नहीं है, वो एक्चुअली उनमें ऑलमोस्ट कह लें कि लाइन लॉसेस तो 10-11% से ज़्यादा नहीं होते, बाकी वो चोरी ही होती है। इसी तरह KPK के और बलोचिस्तान के लातादाद इलाके ऐसे हैं जो बिजली का बिल कभी देते ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो और यहाँ भी ये सूरत हाल है कि वापडा ने खुद तस्लीम किया, नेपरा ने तस्लीम किया कि हमने ओवर बिलिंग की है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन का कोई इंतजाम नहीं। उसकी वजह यही है कि जब चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, आखिर वो कहीं ना कहीं तो पूरे होने हैं। वो जो सार्फिन जो बिल पे खत हैं वो फिर उन्हीं पे नजला गिरता है। तो ये हुकूमत को ईमानदारी की सजा दी जाती है। जी जी जी, ईमानदारी की सजा दी जाती है। हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए, इनको ये इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सिस्टम इम्प्रूवमेंट की तरफ और ये चोरी रोकने की तरफ। तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी सिस्टम में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका। और हमें यकीन है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद हुकूमत पाकिस्तान और जो बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं वो थोड़ी सी तवज्जो इधर भी दे देंगे कि कुछ आवाम के लिए भी करते हैं। ये ना हो कि सिर्फ चोरी कराते कराते आप इन आवाम को रोशनियों से भी महरूम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप इसको देख के, इस प्रोग्राम को देख के आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि जो अशफाक साहब ने कहा हुकूमत उस पर क्यों नहीं अमल करती। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।